Hello, my dear students. Welcome back to my channel, Educational Corner. How are you all? I hope all of you are good. As you're aware that we have started with chapter 3, Health, the Ultimate Treasure. We have already learned about health, its definition, then ways to stay healthy, how can we maintain a healthy lifestyle, then symptoms of being unwell, what is disease, their causes, their types. We have also learned about communicable disease, how do they spread, their causes and their symptoms with their preventive measures in the previous video, which was part 1 explanation of this chapter. Today I have come with the part 2 explanation of this chapter. So let's start with the non-communicable diseases and some few uh, famous scientists also we will study about, and we will also study about few vaccines in this video. How are non-communicable diseases caused? Now, I have already explained you non-communicable diseases are those diseases that do not spread from one person to the another. For example, cancer, diabetes, asthma, but they are linked to lifestyle, diet, or environment. They are the most common cause of death in India. In grade 6, you also learned about diseases like scurvy, anemia, and goiter. So we have non-communicable diseases which do not spread from one person to another, but they are linked to lifestyle, diet, and environment, like diabetes, chronic respiratory disease, cancer, cardiovascular diseases. These are non-communicable as they do not spread from one person to another. What will happen if I take excess of iodine? Now, what will happen if you take excess of iodine? Excess of iodine will cause a disease in you that is named as. So when we take excess of iodine, it will cause thyroid, or you can say goiter. So this happens when we take excess of iodine in our diet. Excess iodine can come from the dietary supplements or fortified foods or other type of medication. So if we are going to take excess of iodine, we will definitely have thyroid, or we can say goiter, which are caused by lack of specific nutrients in the diet. These are called deficiency disease and are also non-communicable. So some deficiency disease, जो हमें deficiency disease कैसे होते हैं जब हमारे अंदर कोई nutrient कम हो जाता है, और ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. डिजीजेज सच एज कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा में ऑफन परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम मोर देन 3 months. तो ऐसे डिजीज जो लंबे टाइम के लिए चलते हैं जैसे कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रॉनिक डिजीजेस. क्यों? क्योंकि ये लंबे टाइम के लिए चलते हैं, मोर देन 3 months. Diabetes is a common disease which is becoming more prevalent in adult as well as children. In fact, India now has the highest number of people with diabetes in the world. तो वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जिनको डायबिटीज़ है, वो ऐसे लोग जो है वो इंडिया में है. इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है, बच्चे भी और अडल्ट भी. इट often develops due to combination of hormonal imbalance, unhealthy eating habits, lack of physical activity, being overweight or obese and other reason. तो डायबिटीज़ का क्या क्यों हो जाता है? हम आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, आपकी डाइट अनहेल्दी हो गई, आपने एक्टिविटीज़ फिजिकल एक्टिविटीज़ छोड़ दी, ठीक है, आपका वेट ज़्यादा हो गया, इस वजह से आपके जो लाइफस्टाइल है वो पूरा चेंज हो जाता है और आपको डायबिटीज़ हो सकता है. लेट अस लर्न मोर अबाउट कॉजेज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन. अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लेट अस सर्वे फाइंड आउट 3 मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेज इन योर नेबरहुड. आपने अपने नेबरहुड में 3 कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज जो है वो ढूंढने हैं. टॉक टू डॉक्टर, नर्स, हेल्थ सेंटर और इवन फैमिली मेंबर who knows about health and what kind of lifestyle changes can help prevent or manage these disease. ठीक है, आपने किसी डॉक्टर से, नर्स से, हेल्थ वर्कर से, या आपने किसी फैमिली मेंबर से जिसको पता हो कि इस डिजीज से कैसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उससे बात करनी है. ठीक है, और यहाँ पर आपने ये टेबल फिल करना है. देखो यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दिए, सीरियल नंबर, नेम ऑफ कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, साइन एंड सिम्टम एंड सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंज. ठीक है,
सबसे पहला है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है? मोटापा। इसमें क्या साइन और सिंबल नजर आएगा? बैक पेन। जब आप ज़्यादा हेल्दी हो जाओगे तो आपके बैक में पेन रहने लगेगा। फिटीक मतलब थकावट होने लगेगी। सजेशन क्या है? ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। इससे आपकी ओबेसिटी जो है वो कम हो सकती है अगर आप अच्छी डाइट लो और एक्सरसाइजेस करो। देन वी हैव डायबिटीज़। डायबिटीज़ में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार वॉशरूम आता है, एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास बहुत लगती है, वेट लॉस हो जाता है, टायर्डनेस रहती है, थकावट रहती है और स्लो हीलिंग। किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई चोट लगी है तो वो इजीली हील अप नहीं होगी, जल्दी ठीक नहीं होगी। सजेस्टेड लाइफस्टाइल में क्या कर सकते हैं? ईटिंग हेल्दी डाइट, टेकिंग प्रॉपर मेडिसिन एंड रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि इसकी मेडिसिन तो आपको लेनी ही पड़ती है। हाई ब्लड प्रेशर में साइंस क्या है? डिजीनेस रहती है, हेडेक हो सकता है, पेन इन चेस्ट हो सकती है। देन इसके सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंज क्या है? कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल। अपना कोलेस्ट्रॉल जो है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कई बार कोलेस्ट्रॉल भी हो जाता है, उसको कंट्रोल करो। रिड्यूस स्ट्रेस अपनी लाइफ में और टेक हेल्दी डाइट। देन वी हैव टू राइट वन मोर डिजीज। तो मैंने यहाँ अस्थमा लिया है। अस्थमा में क्या प्रॉब्लम होती है? ब्रीदिंग इशू होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड चेस्ट टाइटनेस। लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो सकता है आपका? स्टे अवे फ्रॉम पोल्यूशन एंड टेक हेल्दी डाइट। तो इस तरीके से आपने ये टेबल जो है यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल का फिल करना है। Be a scientist. Dr. Kamal Ranadive, 1917-2001, was a pioneering biomedical researcher. She studied how hormones and certain viruses are linked to cancer, helping improve its treatment and prevention. Her work also showed how tobacco, diet, and pollution can raise the risk of cancer, highlighting the importance of healthy lifestyle. और डॉक्टर कमल रानाडे जो है वो जो थी उन्होंने एक रिसर्चर थी। उन्होंने क्या रिसर्च किया था? उन्होंने स्टडी किया था कि किस तरह से हार्मोन्स है हमारे अंदर वो और वायरसेस कैंसर से लिंक होते हैं, ताकि उसके ट्रीटमेंट में और प्रिवेंशन में हेल्प हो सके। और उन्होंने ऑल्सो क्या बताया था? ऑल्सो टोबैको, डाइट, पोल्यूशन, ये जो है कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ा देती हैं। अगर हम ये डाइट लेते हैं, हम टोबैको खाते हैं या डाइट अच्छी नहीं लेते हैं, पोल्यूशन में रहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है कैंसर का रिस्क बढ़ाती हैं। और हमारे लाइफ में हेल्दी लाइफस्टाइल का क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो भी बताएं। हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज। किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कैसे करें? एक्टिविटीज 3.6 लेटर्स रीड। ओडिशा कम्युनिटी लेड सैनिटाइजेशन कैंपेन। इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट, Odisha community sanitization campaign helped more people build and use toilet. This reduced open defecation significantly and improved child health with fewer cases of diarrhea and infection. तो ओडिशा के भद्रक डिस्ट्रिक्ट में जो है कम्युनिटी ने सैनिटाइजेशन कैंपेन स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने लोगों के लिए टॉयलेट्स बनवाए, ताकि वो अलग से जाकर, जैसे पहले के टाइम में लोग खेतों में जाकर ओपन में टॉयलेट कर लेते थे, जिससे कि उनको इन्फेक्शन कैच हो जाता था। तो जब टॉयलेट्स बनवा दिए अलग से तो वो यूज़ करते थे। इस वजह से बच्चों की हेल्थ भी इंप्रूव हो गई और डायरिया और इन्फेक्शन के केसेस भी कम हो गए। What do you infer from the case study? Simple steps like good sanitation can greatly reduce the spread of communicable disease. सिंपल स्टेप इन्होंने अपनाया है, सिर्फ वॉशरूम्स बनाए हैं। सैनिटाइजेशन जो, अगर आप सैनिटेशन अगर अच्छा हो तो उससे क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो इजीली स्प्रेड नहीं होती। ठीक है। एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट डिजीज। हमारी बॉडी के अंदर कितनी एबिलिटी है, हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है? You would have noticed that some people get sick more frequently than others. कई लोग जल्दी सिक हो जाते हैं, क्यों? The natural ability of our body to fight disease is known as immunity. हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो एबिलिटी है डिजीज को फाइट करने के लिए, उसे बोलते हैं इम्यूनिटी। Our body has a special system called immune system that help फाइट अगेंस्ट डिजीज। हमारे अंदर जो है ना एक इम्यून सिस्टम है, एक स्पेशल सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जो हमें डिजीजेस से लड़ने में हेल्प करता है। You might have taken some drops of or injection in your childhood to protect yourself from certain disease such as polio, measles, tetanus, and hepatitis. These are vaccines that help prevent serious infection caused by viruses and bacteria. आपने अपने बचपन में ज़रूर कुछ ना कुछ
हर किसी ने जो है वैक्सीनेशन ली होती हैं, पोलियो, मीजल्स, टेटनस, हेपेटाइटिस की, जिसे हम वैक्सीन्स बोलते हैं, जो हमें एक सीरियस इन्फेक्शन से बचाती हैं। A vaccine help our body to fight certain diseases by training the immune system to recognize and harmful germs and attack harmful germs, providing what is known as acquired immunity, protection developed after exposure to a pathogen or a vaccine. तो एक वैक्सीन जो है ना हमारी बॉडी को हेल्प करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है ताकि हम हार्मफुल जर्म से बचे रहें। ठीक है, ऑलरेडी हमारे अंदर कुछ इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो ऑलरेडी है, बट हमारे को और ज़्यादा जब इम्यूनिटी चाहिए तो हम वैक्सीन लेते हैं। वैक्सीन्स कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज, फ्रॉम weakened or dead pathogens like virus, bacteria, or from inactive or harmless parts of pathogen। तो ये जो वैक्सीन्स बनती है ये बनती भी पैथोजन से ही है, या तो किसी जो बहुत वीक बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनसे बनती है, या डेड से बनती है, या जो बिल्कुल इनएक्टिव या हार्मलेस होते हैं उनसे वायरस या बैक्टीरिया से बनती है। सम न्यूअर वैक्सीन्स इंस्ट्रक्ट आर own body cells to make harmless part of germ which our immune system learns to fight। कई जो न्यूअर वैक्सीन्स हैं वो हमारी बॉडी में ही क्या करती हैं, हमारी बॉडी में ही जो है हमारी बॉडी को इम्यून करती है ताकि हम किसी भी चीज़ से लड़ सकें। फॉर एग्जाम्पल, अ टेटनस शॉट ऑफन गिवन आफ्टर ए इंजरी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, हमें कहीं चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो हमें क्या करते हैं, फटाफट से इंजेक्शन लगवाते हैं टेटनस का। क्यों? ताकि कोई बैक्टीरिया जो है आपको इन्फेक्ट ना कर ले। It contains an inactivated bacterial toxin that helps the immune system develop protection without causing the disease। ठीक है, इसके अंदर टेटनस का जो इंजेक्शन लगता है उसमें क्या है, एक ऐसा इनएक्टिव बैक्टीरियल टॉक्सिन है जो हमारी बॉडी में कोई मतलब डिजीज ना हो जाए उससे बचाता है। डू यू नो व्हेन द फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड? पहली वैक्सीन कब डिस्कवर हुई थी? एडवर्ड जेनर एंड स्मॉलपॉक्स वैक्सीन। Smallpox was a deadly disease that caused blisters and killed millions। Smallpox जो है ना एक टाइम पे इतनी ज़्यादा फैली थी कि शरीर में ब्लिस्टर्स होते थे, गोल गोल ब्लिस्टर्स हो जाते थे, रेडनेस हो जाती थी बहुत, और साथ में बहुत से लोगों को मारा। अ माइल्डर डिजीज कॉल्ड काउपॉक्स सीन इन काउज ऑल्सो इन्फेक्टेड ह्यूमन। काउपॉक्स जो काउज में देखी गई उससे भी लोग जो है वो काफ़ी मरे। इन लेट 1700s, English doctor Edward Jenner discovered the people who had cowpox did not get smallpox। तो 1700 में एक इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने ये देखा कि जिन लोगों को काउपॉक्स हुआ था उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट वैक्सीन एंड हेल्प पीपल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तभी बनी क्योंकि लोगों को जिनको काउपॉक्स हो गया उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, तो इससे पता लग गया कि इसकी फर्स्ट वैक्सीन तभी बनी थी कि अगर किसी को काउपॉक्स होगा तो स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। आर साइंटिफिक heritage. Long before modern vaccine, India had a traditional method called variolation to protect against smallpox। It involved using material from the smallpox sore to scratch the skin and create a mild infection and build immunity। People who performed this practice were known as टीकेदार। तो इससे पहले मॉडर्न वैक्सीन से पहले इंडिया में एक ट्रेडिशनल मेथड चला था, वेरियोलेशन, जिसमें क्या करते थे, स्मॉल पॉक्स से बचाने के लिए कुछ मटेरियल का यूज़ करते थे, जिसे यूजिंग मटेरियल फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स सोर टू स्क्रैच द स्किन। जो स्मॉल पॉक्स सोर से क्या करते थे, स्किन को स्क्रैच करते थे और माइल्ड इन्फेक्शन जो है ना, माइल्ड इन्फेक्शन से इम्यूनिटी को बिल्ड करते थे। ठीक है, और जो ये काम करते थे उन्हें टीकेदार बोला जाता था। Think like a scientist। Observations। Jenner observed milkmaids who had cowpox did not catch smallpox, likely because two viruses are related। तो क्या ऑब्जर्व किया था कि जिनको काउपॉक्स हो गया उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों वायरस जो आपस में रिलेटेड थे। हाइपोथेसिस। कंटेंट इन द पस ऑफ काउपॉक्स ब्लिस्टर्स प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम स्मॉलपॉक्स। जो काउपॉक्स में जो प्रॉब्लम ब्लिस्टर्स हो रहे थे वो लोगों को स्मॉल पॉक्स से बचा रहे थे। Experimentation। He tested this by injecting cowpox sap into a boy who later showed no illness when exposed to smallpox। तो उसने क्या टेस्ट किया, किसी बॉय के अंदर काउपॉक्स का इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, और जब उसको स्मॉल पॉक्स
ये जो जर्म्स थे उसके साथ एक्सपोज किया गया तो कोई इलनेस नहीं मिली। रिजल्ट, ही फाउंड दैट पीपल हु आर इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स वर नाउ रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स। तो तभी उन्होंने फाइंड किया कि जिन लोगों को काउपॉक्स हो चुका है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। एप्लीकेशन, मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प एरिकेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड। तो धीरे धीरे वैक्सीनेशन जो है वो मास वैक्सीनेशन बनी, जिससे कि स्मॉल पॉक्स जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गया। Vaccines are one of the most effective ways to protect people of all age from infant to elderly against many serious diseases. They prevent illness, it reduces the spread of infection and save millions of lives every year. It is important to remember that vaccines are preventive, not curative. They can help minimize serious diseases before they happen, but do not treat them once someone is already sick. Some people may fear or doubt vaccine, but scientists and doctors carefully test them for safety. Getting vaccinated not only protects you but also the people around you. तो वैक्सीन जो है सारी एजेस के लिए है। वैक्सीन फ्रॉम इन्फेंट, छोटे बच्चों से लेके बड़े तक के लिए, ये हमें प्रिवेंट करती है बहुत सीरियस इन्फेक्शन से और किसी भी तरह की इलनेस से बचाती है। ठीक है, सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम टाइमली टू टाइमली वैक्सीन जो है वो लगाते रहें, क्योंकि एक प्रिवेंटिव मेजर है। ठीक है, हमें सीरियस डिजीज से बचाने का। ठीक है, डॉक्टर्स अच्छे तरीके से जो है केयरफुली टेस्ट करते हैं इन वैक्सीन को और सेफ्टी हमारी सेफ्टी के लिए प्रॉपर तरीके से इनको टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अब खुद तो प्रोटेक्टेड रहो, आसपास के लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सको। Ever heard of India's role in vaccine production? India is one of the most world's largest vaccine producer. It manufactures vaccines on the massive scale and supplies them to many countries. Indian vaccine companies played a key role during COVID-19 pandemic and continue to support global health efforts. तो इंडिया जो है इसका रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है वैक्सीन प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है और कोविड टाइम पे भी इसने काफ़ी कंट्रीज़ को वैक्सीन सप्लाई करी है। Be a scientist. Dr. Maharaj Kishan Pal Ban was a well-known Indian doctor and scientist. As Secretary of Department of Biotechnology, he helped promote science and innovation in India. He played a key role in developing the rotavirus vaccine. इन्होंने क्या बनाया महाराज किशन बन ने? इन्होंने ये डॉक्टर भी थे, साइंटिस्ट भी थे और इन्होंने रोटा वायरस की वैक्सीन बनाई विच प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम दी डायरिया, जो डायरिया से बच्चों को बचाती है, जो लूज मोशंस लग जाते हैं। He believed in using research to create affordable healthcare and made a big difference in India's health and biotechnology sectors. ठीक है, तो इन्होंने रोटा वायरस की वैक्सीन बनाई जिससे कि बच्चों को प्रोटेक्शन मिली डायरिया से। Treatment of disease. If our immune system fails to protect us against infections, we fall ill and need to visit a doctor. Doctor may give us medicine and called antibodies which kills the bacteria that might have caused the disease. Antibodies work only against bacterial infection because they target parts of bacterial cells that are different from human or other animal cells. They do not work against viruses and diseases caused by protozoa. तो जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमें किसी डिजीज से नहीं बचाता, ठीक है, हमारी बीमारी होती है या कुछ भी हम बीमार हो जाते हैं, उस टाइम पे हम डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर हमें जो मेडिसिन देता है उसे वो कहता है ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक एक्चुअली क्या होती है? जो किसी बैक्टीरिया को मारती है, ठीक है, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और एंटीबायोटिक जो है वो क्या करती है? कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसके लिए जो है काम करती है। ये जो बैक्टीरियल सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं उसको, जो हमें डिजीज़ क्रिएट करते हैं हमारे अंदर, उसको मारती है, उसके खिलाफ लड़ती है। ठीक है, और किसी वायरस के खिलाफ या प्रोटोजुआस के खिलाफ ये नहीं लड़ सकती। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कब डिस्कवर हुई? 1928 में। और किसने करा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब bacteriologist from London. While studying harmful bacteria, he noticed that a mold of discarded petri dish stopped the bacteria from growing. ठीक है, उन्होंने क्या किया? एक नोटिस दैट अ मोल्ड, एक मोल्ड में उन्होंने देखा कि ऑन अ डिस्कार्डेड पेट्री डिश, एक पेट्री डिश जो होती है उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है मोल्ड में रुक गई। ही रियलाइज द मोल्ड रिलीज अ सब्सटेंस दैट किल्ड बैक्टीरिया। दिस चार्ज
discovered the lead of discovery of पेनिसिलिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, जब उन्होंने ये देखा कि मोल्ड पे जो है वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा, ठीक है, तो उन्हें लगा कि कोई सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दिया, जिसने बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दिया या उसको किल कर दिया। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने फर्स्ट डिस्कवरी करी किसकी, फर्स्ट एंटीबायोटिक की, पेनिसिलिन की, जिसने बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर दिया। दो एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन protecting us from bacterial infection and have saved millions of lives since their discovery. Their indiscriminate use has led to a decline in effectiveness. Nowadays, there are news and headlines about antibiotic resistance, a phenomenon where bacteria that were earlier killed by antibiotic are found to survive and multiply despite treatment with that antibiotic. तो पहले के एंटीबायोटिक्स जो थी वो काफ़ी लोगों के एंटीबायोटिक्स ने जान बचाई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाया। ठीक है, बट आज के टाइम में न्यूज़ में कई बार हेडलाइंस होती है कि एंटीबायोटिक्स जो है ना, एंटीबायोटिक्स की वजह से क्या हुआ, पहले तो बैक्टीरिया वो मर गया बट बाद में फिर से वो सर्वाइव कर गया और दोबारा से मल्टीप्लाई कर गया। दिस मेक्स हाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्प्रेड इन कम्युनिटी। ठीक है, अब ये पूरा यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, आप यहाँ देखो कि किस तरीके से फैला। ये जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं इनके थ्रू फैला। स्प्रेड थ्रू ऑयल इन क्रॉप फील्ड। ठीक है, ये क्रॉप में जो भी मैन्योर है, एनिमल फेसेस है, उसकी वजह से फैला। और ये जो क्रॉप्स हैं इनके अंदर गया। ठीक है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगे, जब हम खाएंगे तो हमारे अंदर ये फैल जाएंगे। ठीक है, फिर इसी वजह से जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये फूड प्रोडक्ट्स की वजह से भी जो है वो एनिमल्स जो फूड प्रोडक्ट देते हैं, बटर, मिल्क, एग, इसकी वजह से भी जो है हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स, बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाते हैं। हाउ रेसिस्टेंट बैक्टीरिया थ्रू ह्यूमन एनिमल ह्यूमंस। अब यहाँ पर आप देखो कि कैसे बना हुआ है यहाँ पर कि मे हैव सीरियस इलनेस एंड गेट्स केयर एट हॉस्पिटल। ठीक है, क्या बैक्टीरिया, आपको बैक्टीरिया की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे होगी, ह्यूमंस के थ्रू कैसे फैलती है। आपको केयर चाहिए, आप हॉस्पिटल गए, जब आप हॉस्पिटल गए वहाँ पर आपके साथ और भी लोग जो हैं वो जुड़ेंगे और हेल्थ केयर सेंटर में वर्कर्स भी जुड़ेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से वो हॉस्पिटल से स्प्रेड हो सकती है। हॉस्पिटल से स्प्रेड होगी, जब पेशेंट घर जाएगा तो वो फैमिली में स्प्रेड हो जाएगी या किसी और को स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पर्सन से भी स्प्रेड हो सकती है और एनिमल्स और बर्ड से भी स्प्रेड हो सकती है। कॉमन इन्फेक्शन हार्डर टू ट्रीट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एंड इवन डेथ। तो ऐसे डिजीज जो इन्फेक्शंस जो जिसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है या इलनेस बहुत ज़्यादा टाइम के लिए है, ठीक है, तो ऐसे में एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं कर पाती। Let us infer. Study the infographic given in 3.5b. How do you think the antibiotic resistance has been developed in bacterial pathogens? What precaution may be taken to reduce antibiotic resistance? To tackle the problem of antibiotic resistance, we must use antibiotic wisely. Antibiotic को wisely use करना चाहिए. Only when prescribed by a doctor, in the correct dose and for right duration. Avoiding unnecessary use helps prevent the rise of resistant bacteria and keeps antibiotic effective for future generation। ठीक है, अगर हम उसको यूज़ करना है एंटीबायोटिक को तो हमें प्रॉपर डोज के अकॉर्डिंग, जो हमें प्रिस्क्राइब की है फिजिशियन ने, डॉक्टर ने, उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन मेथड लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी have been used in India for many years to manage common health problems. How bacteria became resistant to antibiotic? अब बैक्टीरिया कैसे फैलता है? A few microbes develop resistant to antibiotic. कई बैक्टीरिया तो इजीली आप कहो कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस, मतलब उनको और ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल जाती है। कई बार तो मर जाते हैं, एक दो मर जाते हैं, कई जो है वो नहीं मरते। When antibiotics kill bacteria causing illness, they also kill good bacteria protecting the body. जब वो बैक्टीरिया को मारते हैं, एंटीबायोटिक्स मारती हैं, तो कई गुड बैक्टीरिया भी उसके अंदर मर जाते हैं। द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर। ठीक है, तो जो ऐसे बैक्टीरिया जो हमें बीमार कर रहे हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया जब वो ज़्यादा हो जाते हैं हमारी बॉडी में, सम बैक्टीरिया ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टू अदर बैक्टीरिया कॉजिंग मोर प्रॉब्लम। ठीक है, आई नीड एंटीबायोटिक फॉर माई मदर। अब एंटीबायोटिक का ही है कि एंटीबायोटिक कैसे जो है वो रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक बैक्टीरिया जो है, पहले जब आपने एंटीबायोटिक ली, ठीक है, उसमें क्या हुआ, कई गुड बैक्टीरिया मर गए।
जब गुड बैक्टीरिया मर गए तो जो बैड बैक्टीरिया है वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो सकती है। मिनरल्स फॉर मैनेजिंग इलनेस एंड प्रमोटिंग रिकवरी and focus on healthy lifestyle and balanced diet. While these systems can help with some condition and are useful everyday well-being, they may not be effective for all disease and at all stage. ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है हम बैलेंस डाइट लें, हेल्दी लाइफस्टाइल हो हमारा तो हम सही रहेंगे, ऐसा नहीं है। कई कई चीज़ें जो हैं कई कई कंडीशंस पे इफ़ेक्ट करती हैं। Therapies for non-communicable diseases, focusing on managing system and improving quality of life through medication, lifestyle changes and rehabilitation. Early diagnosis and continuous care are key to control the disease progression and prevent complication. तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है इनमें हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे? मेडिकेशन, लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, ठीक है। जैसे ही हमारे को डायग्नोज हो कोई भी प्रॉब्लम तो हमें कॉन्टिन्यूस उसकी केयर करनी चाहिए ताकि हम उसको ठीक कर सकें, right? So with this I have come to the end of this chapter. I hope you have understood the chapter. We have studied about non-communicable disease, then antibiotics in this chapter. Now I'll come up with the summary as well as the question answers of this chapter in my next video. If you are liking my videos, please do subscribe my channel, share your valuable comments with me. Thanks for watching my video.